मैं एक रिक्वेस्ट करा ਤੁਹਾਨੂੰ कि तुसी भंते जी का अगर प्रवचन सुनिया और फिर भी तुसी अपनी टॉक दे विच सारे पॉइंट लियांदे जिहड़े भंते जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कीते सी और उन्होंने मतलब ऑलरेडी दस्सिया सी कि गलत है। इस करके मैं रिक्वेस्ट करदा सारे स्टूडेंट्स नूं कि जिस वेले वो किसी भी विचारक नूं जां मतलब जिद्दां भंते जी साडे विच बहुत लर्नड बैठे ने, अगर उन्हां नूं तुसी सुणदे हो ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੰਤੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮੀਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੇ जोर शोर दे नाल और बड़ी अच्छे तरीके दे नाल अपनी मतलब समझ दा प्रचार प्रसार कर रहे ने और इस दे विच मैनू मतलब जिन्नी खुशी हुंदी है मेरा ख्याल है होर किसी नूं नहीं खुशी हुंदी, क्योंकि मैं तुहानूं ये सारे सिचुएशन दे विच डेवलप हुंदे देखिया। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब ਅਸੀਂ गलत धारनावां साडे विच हैन उन्हां नूं आउण वाले समय 'च आपां दूर कर लांगे। लेकिन मैं सारे स्टूडेंटां नूं जिन्हां ने पार्टिसिपेट किया और जिन्हां ने आउण वालियां ने भी करना मैं बहुत बहुत बधाई दिंदा कि तुहानूं मतलब रीली अगर बेस्ट कोई चीज़ असी दे सके तो वो आप भगवान बुद्ध का ज्ञान, बाबा साहब अंबेडकर का ज्ञान। तो इन्हां शब्दों के नाल ही मैं भंते जी नूं मतलब अज दा कंकलूजन करन लई कहना, क्योंकि कुछ सवाल जिहड़े आ भंते जी ने नोट किए हुए ने वो भी मतलब इसका जवाब देणगे, पर मेरे सवाल जिहड़े मतलब मेरे लिए सवाल है वो मैं अगले सैशन दे विच जिस वेले भी आपां रखांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दे दूंगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बराल साहब जी। जेकर बल्कि तो मैं भंते जी नूं कहूंगा कि भंते जी तुसी क्यों नहीं वो सवाल ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਿਕॉज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। बैल साहब जी थैंक यू तुहाडा बहुत बहुत। ते ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि अब टाइम भी काफी हो गया, भंते जी ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੰਤੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੈ ਜੀ। जय भीम सारे साथियों ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੋ ਹੁਣ ਭੰਤੇ ਲਾਲ ਬੇਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਭੰਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ? जी 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 बिल्कुल जी। पंते जी बोलिए। हेलो, हाँ जी जी, हाँ पंते जी। बोलिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक्चुअली में कुछ सवाल तो मैंने लिखे हैं, और वैसे आज मैं मीटिंग में आना नहीं चाहता था। मेरे को एक्चुअल में क्या, ये सर में चोट लग गई है। वो काटा था लोहे का, वो चावल की बोरियां हम उतरवा रहे थे, वो राशन वितरण के लिए चावल आज खरीदे हैं, अच्छा जी। तो वो दीवार के बराबर में रखवा रहे थे, तो एक गाटर निकला हुआ था, वो सर में लग गया, 2 टाके उसमें आ गए। और तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों का उत्साह देखकर मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बच्चों का हौसला अफजाई करना हमारा जो यही धर्म है, भविष्य है हमारे देश के। तो मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा सा बोलूंगा उसमें। सबसे पहले, जैसे कि कई बच्चों ने महात्मा बुद्ध वर्ड का इस्तेमाल किया है। हालांकि उपासक रवि जी ने इस विषय में बताया, मैं थोड़ा और विस्तार से 2 मिनट का टाइम दूंगा कि तथागत बुद्ध ने ऐसे चर्चा करने से मना किया है जिससे हमें चर्चा करने वाले दोनों लोगों को या समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा ना हो, एक बात। दूसरी, लेकिन बार बार ब्राह्मण उनसे सवाल करते थे। एक बार एक प्रवचन के दौरान जो उनका चचेरा भाई था आनंद ने कहा कि हे शास्ता, कि ब्राह्मण कहते हैं कि इस संसार को बनाने वाला एक ईश्वर है, और हम सभी लोगों में उस ईश्वर ने आत्मा का प्रवेश करा दिया है, और आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। और जैसे कि हम लोग कपड़ा बदलते हैं, चीवर बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती रहती है। हे शास्त्रा, ये एक विडंबना है, लोग सवाल हमसे करते हैं, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। पहले तो बुद्ध शांत रहे। एक्चुअली में इस विषय पर बुद्ध कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि कुछ बोलने के बाद भी वस्तु पराई हो जाती है, उसे संभाल के रखना था। लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया आनंद ने, तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, इस संसार में मेरी खोज के दौरान कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा पदार्थ मुझे नहीं मिला जिसे ईश्वर कहते हैं, ने ये संसार बनाया हो। जब इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में कोई ऐसा तत्व ही नहीं है जिसे ईश्वर कहते हो, फिर उस ईश्वर की बनाई हुई आत्मा को कहां से लाओगे? ये भी उस ईश्वर की तरह है जो अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है, या जो कल्पना वो सिर्फ दिमागों में, लोगों के दिमाग में होती है, यथास्थिति कहीं नहीं होती है। इसलिए एनकाउंटर कर रहे हैं, उनको महात्मा बोल सकते। तो मैं समझता हूँ ये जिनको जानकारी नहीं है वो ठीक है, लेकिन जिनको जानकारी है वो लोगों को बताएं कि ये बहुत गलत है बुद्ध को महात्मा बोलना। एनकाउंटर, विचारों का एनकाउंटर करना, एक बात। दूसरी बात जो आया है, बुद्ध का जो विशेष, बुद्ध की और अन्य धर्मों में फर्क क्या है? जी हेलो, जी जी, आवाज आ रही है? जी जी जी।
तो बुद्ध में और अन्य धर्मों में, जैसे भी पूनम शर्मा मैडम ने भी, हालांकि पंजाबी मुझे नहीं आती है, कुछ वर्ड मैं समझ रहा था, तो शायद उनको भी कुछ मिल जाएगा। तो बुद्ध में और अन्य लोगों में, जो जैसे कि हजरत मोहम्मद है, 2004 से 2007 तक मैं फिरोजाबाद में, यूपी में, मैं चर्च का फादर रहा हूँ। तो बड़ी चर्च थी वहां पर, वो कॉलेज और हॉस्पिटल वगैरह मैंने देखा है, मैं डायरेक्टर था उसका, चर्च का फादर। तो बहुत सारे चीजें हमने सीखने को मिला हमें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अकॉर्डिंग बाइबल, बाइबल का मतलब है पुस्तकों का जखीरा, जो त्रिपिटक है, पाली भाषा में त्रिपिटक बोल देते हैं, एब्रानी भाषा में उसी चीज को बाइबल बोल देते हैं। सेम बात वही है, भाषा का फर्क है, बाइबल और त्रिपिटक एक ही है, भाषा का अंतर है। तो यीशु कहते हैं कि मैं उस खुदा का जो आसमान पर बैठा है, मैं उसका पुत्र हूं, और आप लोग जो पाप करते हैं उन पापों की सजा आपके बदले मैं लूंगा, और ईश्वर आपको माफ कर देगा। और जो मेरी बात मानेगा, ईश्वर को, वो खुदा को प्यारा होगा। यानी कि ईश्वर को मानना अनिवार्य है, और ये भी मानना जरूरी है कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। मेरे से जितना लगाव रखोगे, आपका खुदा उतना ही आपके नजदीक रहेगा। हजरत मोहम्मद कहते हैं, मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब उस खुदा की इबादत करो जो अकेला है, जो आसमान पर बैठा है, उसके सिवा कोई दुनिया में नहीं है। तो हजरत मोहम्मद कहते हैं कि अगर कोई मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूं, मेरे से पहले तो बहुत सारे नबी आए हैं, वो बुद्धा को भी नबी कहते हैं, और मेरे बाद कोई नहीं आएगा, चैप्टर बंद, मैं आखिरी हूं, मेरी जो बात मानेगा उसका कल्याण होगा, बाकी का नहीं होगा। यीशु भी यही कह रहे हैं कि जो मेरी बात मानेगा उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। हजरत मोहम्मद भी यही कह रहे हैं कि जो मैं तो आखिरी हूँ, लिस्ट ही खत्म हो जाती है। हजरत मोहम्मद कह रहे लिस्ट ही खत्म हो जाती है, मेरे बाद कोई नहीं आएगा, और मेरी बात मान लो। ब्लैकमेल, मैं इसको समझता हूँ एक तरह की ब्लैकमेल। तो एक चैप्टर, एक ये सवाल है, और एक अब उनसे भी आगे, हिंदू धर्म का हालांकि कोई संस्थापक नहीं है, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है, मैं समझता हूँ जो आजकल का जो हिंदुइज्म चल रहा है भारत में, कृष्ण को उसका संस्थापक माना जा सकता है, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं। उसमें कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानात् वगैरह वगैरह। आत्मा अमर है, अजर है, वो न मरती है, और जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों का नाश करके और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। और जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं तो साक्षात ही, समझ रहे ना, यीशु भी बेटे हैं और मोहम्मद भी पैगाम है, लेकिन वो अगर मैं तो साक्षात वही हूँ, तो सीधे सीधे मेरी शरण में आ जाओ, और जो मेरी शरण में आ जाएगा उसका कल्याण होगा, बाकी का नहीं होगा। एक तरह की ये भी ब्लैकमेलिंग होगी। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बोलूंगा। अब ये 3 तो वर्ड के धर्म है, 4 धर्मों को मैंने उल्लेख किया। अब आ जाइए बुद्ध में क्या विशेषता है, बुद्ध क्या कह रहे हैं इस विषय पे, जबकि हजरत साहब ने बोला है कि मैं उनका आखिरी पैगंबर हूँ, यीशु जी कह रहे हैं अकॉर्डिंग बाइबल कि मैं उनका बेटा हूँ, और कृष्ण ने तो कह ही दिया कि मैं तो साक्षात वही हूँ जो ऊपर बैठा है, मैं ही सब करता हूँ, मैं ही मारता हूँ और मैं ही मरता हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ और मैं ही खत्म करता हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ, आप तो सिर्फ एक निमित्त हैं। लेकिन बुद्ध का इस विषय में क्या कहना है? बुद्ध ये कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो 8 बार दोहराया बुद्ध ने, नकारना। कैसे? किसी बात को इसलिए मत मानो कोई बहुत मोटी पुस्तक में लिखी हो, गलत भी हो सकती है। किसी बात को इसलिए मत मानो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो, गलत भी हो सकता है, क्यों लिखने वाले हम ही लोग हैं ना, इंसान, गलत हो सकता है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई धर्म गुरु कह रहा है, इंसान है, गलती कर सकता है, वो कुछ गलत भी अपने स्वार्थ के लिए बोल सकता है, उन्हें विवेक से सोचो समझो फिर उसको मानो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से चली आई है। परंपरा यानी कि जैसे कि एक समय का जो पाखंड आजकल जैसे चल रहा है दुनिया भर में, एक समय का पाखंड, एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी में धर्म बन जाता है, तो तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, धर्म का वो परंपरा बन जाती है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं, मेरे माता पिता कह रहे हैं, मेरे भाई भाई बहन अदर रिलेटिव कह रहे हैं, या लोगों की इच्छाएं है। नेवर। आप किसी बात को मानो तो इसलिए मानो कि तुम्हारी बुद्धि या बुद्धि तर्क
विवेक की कसौटी पर खरी उतरती हो और आपके लिए लाभदायक हो। क्या बोले? आपके लिए लाभदायक हो। मैं कह रहा हूं इसलिए भी मेरी बात को मत मानो। जब तक कि मेरी कही हुई बात पर आप अमल नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि पर खरी नहीं उतरती, और जब खरी नहीं उतरेगी, आपके विवेक में नहीं आएगी, आप अमल नहीं करोगे और आपको कोई बेनिफिट लाभ नहीं होगा, तो मेरे कहने से क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं इसलिए भी मत मानो। आप अपनी तर्क बुद्धि और विवेक के अनुसार सोचो समझो और अमल करो। आपको फायदा हो तो मान लो। ये बुद्ध की सबसे बड़ी देशना और सबसे बड़ी जो बुद्ध को उत्तम शिखर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हिमांच्छादित बुद्ध, हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखलाएं तो दुनिया भर में है। कुछ उपासक लंदन में बैठे हैं, कुछ कैलिफोर्निया में, पूरी दुनिया में जैसे बैठे हैं, अमेरिका में रवि जी बैठे हैं। पर्वत तो वहां भी होंगे, लेकिन हिमालय हिमालय अतुलनीय है। उसी तरह इन धर्मों के प्रमुख और धर्माचार्यों के बीच में जिस तरह से हिमालय शिखर उत्तुंग शिखर बड़ा है, इसी तरह बुद्ध भी अलग नजर आते हैं। हमारे देखने की नजरें कमजोर हैं। हमारी नजरें जहां तक उठती है हमें वहां तक दिखता है, और जहां दिखना बंद, नजरें उठनी बंद हो जाती है, वहां अंधेरा छाने लगता है, हमें धुंध नजर आता है, हमें आकाश शून्य नजर आता है, और हम ये कहते हैं तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हम अपने विवेक और बुद्धि के बल पर जहां चाहे जा सकते हैं, जहां जितना चाहे देख सकते हैं। विपश्यना, जिस कंडीशन में बुद्ध को ज्ञान मिला, एक्चुअली में जो योग है, आजकल पूरे दुनिया में योग की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। उस योग को जिस समय बुद्ध को उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रकाश मतलब सही और गलत की जानकारी हुई, और जानकारी की संसार अनित्य है, संसार अनित्य है, सब मिटने वाला, जो हम देख रहे हैं खत्म हो जाएगा, फिर पुनः होगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष समुत्पाद जो उन्होंने सारनाथ में बोला, और बुद्ध को जो जिस तरीके से वो बैठे, जिस योग में उनको ज्ञान प्राप्त हो, आनापानसति योग कहते हैं। आनापानसति योग वो प्रक्रिया है। आना, श्वास का आना, पाना जाना, श्वास का लेना, श्वास को छोड़ना, इस पर कंट्रोल करना। सांस कहाँ जा रही है, मतलब लीवर में जा रही है, फेफड़ों में जा रही है, मेरे गले में सांस, वायु को आवागमन, ये किस नाक से जी है वायु, किस नाक से आ रही है वायु, इस पर कंट्रोल करना। बुद्धि में, दिमाग में कहाँ विवरण हो रहा है, कंट्रोल करना, पाना, आना पानी में बैठकर पद्मासन में बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे एक्चुअली में सब कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी कि एक माइंड, अगर मैं सब कॉन्शियसनेस हासिल कर लूं, आप जितने भी दुनिया भर में लोग बैठे हैं, मैं यहीं से सबके माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे मोबाइल बात करता है, मैं अगर कहूं कि आप इसको चाटा मारिए, तो आपको निसंदेह चाटा मार, वो एक कला है, सब कॉन्शियसनेस। उसको प्राप्त करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और असंभव भी कुछ नहीं है, बस प्रक्रिया से गुजरना है। एक बात तो सवाल ये हो गया एक तो कि बुद्ध की विशेषता। अब आ जाती है जैसे कि एक बच्ची ने वो सेनापति पुष्यमित्र, हालांकि मैं उसको दोहरा चुका हूँ, 187 में वज्रदत्त राजा बना, 187 बीसी में, और सिर्फ 2 साल ही राजा रहा। 2 साल के बीच में उसने अपने जो जमदग्नि का बेटा था, जिसे आप ये विश्वामित्र के नाम से भी जानते हैं, उसके सॉरी वो पुष्यमित्र सिंह के नाम से भी जानते हैं, और एक वो था ब्राह्मण, वो जिसने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था, परशुराम। पुष्यमित्र को परशुराम इसलिए कहते क्योंकि जिस हथियार से बौद्धों का नरसंहार किया ना, वो एक कुल्हाड़ी की माफिक होता, फरसा के नाम से आप जानते हैं। फरसे से वार करने के कारण उसे परशुराम यानी मार, यानी कि मारना, मार का मतलब मारना, और ऐसा करके उसने जो किया तो उसे परशुराम कहा जाने लगा। और 2 सालों में, क्योंकि उसको सेनापति जैसे बनाया, वो लंबी एक प्रक्रिया है, और उसने ऐसा ऐसा किया। उसके बाद जो अभी बच्चे कह रहे थे कि एक बूढ़े आदमी को देखा, एक मरीज को देख लिया, एक अंतिम मतलब अंत्येष्टि होते हुए किसी को देख लिया, बीमार को देख लिया। एक्चुअली में ये जो कल्पनाएं हैं, ये पुष्यमित्र शुंग के काल में ही एक बौद्ध भिक्खु थे, ब्राह्मण थे, और वही जो साकेत है, जिसे आज अयोध्या कहा जाता, वहीं के रहने वाले थे, नाम था अशोक घोष।
अच्छा, वो चूंकि वो ब्राह्मण परिवार से ही थे, उन्होंने ये परिकल्पना की कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैंने त्रिपिटक पढ़ा है, मैंने लाइट ऑफ एशिया और बहुत सारे अंग्रेजों, लगभग 15-20 किताबें अंग्रेजों ने ऐसी लिख दी है जो बहुमूल्य किताबें हैं। जैसे कि सर जॉन मॉर्शल ने बहुत अच्छा लिखा है इस विषय पर, लॉर्ड कनिंघम ने बहुत अच्छा लिखा है इस पर, जो रिसर्च किया है। तो वो सारा क्लाइमेक्स तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कर ही दिया, बुद्ध एंड हिज धम्म, क्योंकि त्रिपिटक बहुत बड़ा है, हर आदमी नहीं खरीद सकता। वो 40-50 हजार रुपए का होता है, हर आदमी नहीं खरीद पाएगा। खरीद भी लिया तो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबें हैं, मतलब 3 पिटारों का एक पुस्तक है, यानी कि पिटारा, 3 पिटारा है। तो वो बहुत किताबें वो पढ़ने पे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता था कि मैं बुद्धिज्म लूंगा तो मेरे लोग बौद्ध बनेंगे, तो इतना सारा गरीब है, पढ़ नहीं पाएंगे, तो मुझे क्या करना है, उनके लिए कुछ सुलभ रास्ता हमें खोज देना है, उनको कोई मेहनत ना करनी पड़े और अच्छा रास्ता की सही जानकारी मिले। तो उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में बुद्ध एंड हमारा लिखना शुरू कर दिया था, और लगभग 6 वर्षों के अंतराल में वो कंप्लीट हुआ। तो एक रिसर्च है ये, तो मैं रिकमेंड करूंगा, बुद्ध एंड हिज धम्मा लोग मंगवा लें। नागपुर में एक उपासक हैं मिस्टर परवीन खोबरागढ़े जी, उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्मा को बहुत सस्ते में छापा है, शायद 40-50 रुपए में वो मिल जाएगा, या हो सकता है वो सस्ता छापा हो, मैं उनसे कंफर्म करके। और मैं चाहूंगा कि वो लोग जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो 20-30 रुपए का बुद्ध एंड हिज धम्मा मंगवा सकते हैं। तो ये हम इस पे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। एक बात, दूसरा जो है सम्राट अशोक के विषय में, जैसे भी एक बच्चे ने बताया था, एक्चुअली में सम्राट अशोक ने जो काम किया उसके विषय में बहुत कम जानकारी है, हमें भी बहुत कम जारी थी। लेकिन 2018 में जब हमने श्रावणी की दीक्षा नागपुर में ली, एक वीडियो हमने देखा, और मैं शेयर करूंगा उस वीडियो को, अभी वही है नागपुर में मंगाकर। लगभग 20 देशों में सम्राट अशोक ने कॉलेज बनवाए थे, ये जानकारी मैं नहीं जानता आप में से कितने, और वो कॉलेज आज भी अच्छी कंडीशन में है और चल रहे हैं। जैसे लंदन का कॉलेज है, कैम्ब्रिज है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड है। इस तरह की यूनिवर्सिटियां जो सम्राट अशोक ने बनवाई थी, आज वो सही सलामत और चल रही हैं। तो उसका वीडियो एक बनाया गया है, मैं बात करूंगा नागपुर की अपनी टीम से कि वो हमको भेजे वीडियो, मैं आपसे शेयर करूँ। एक बात, दूसरे, क्योंकि एजुकेशन, बुद्धिज्म का मतलब एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना, और मठ, मठ यानी मोनेस्ट्री। तो आगे जो है अभी निष्कर्मण, जैसे कि अभी कहा कि वो 3 कारण थे घर छोड़ने के, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक उपासक ने बताया था, मैं भूल गया किसने बताया था। 20 साल की उम्र में सिद्धार्थ राजकुमार को शाक्य संघ का जैसे मेंबर बनाया गया, अकॉर्डिंग बुद्ध एंड हिज धम्मा। वो नियम था शाक्य संघ में कि जो शाक्यों का लड़का 20 साल का, 20 वर्ष का हो जाएगा, वो शाक्य संघ का मेंबर बनेगा। तो 20 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ को मेंबर बनाएगा। निरंतर 8 साल तक वो अपने कुटुंब की, परिवार की, देश की, शाक्य संघ की वो सेवा करते रहे। 8वें वर्ष में एक अचानक घटना हुई कि जो कोलिया और शाक्य संघ के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम रोहिणी था, वो क्योंकि पानी कभी कभी उसमें कम आता था, उस पर झगड़ा दोनों तरफ के किसानों से हो जाया करता था। तो पानी को लेकर के खेती के लिए थोड़ा झगड़ा हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई, बात राजा तक पहुंची। शाक्य संघ ने कोलियों पर अटैक करने के लिए एक सभा बुलाई, जिसका विरोध सिद्धार्थ ने किया। तो सिद्धार्थ का सुझाव था कि 2 लोग शाक्यों में से चुन लिए जाएं, 2 लोग कोलिया में से चुन लिए जाए, ये 4 लोग मिलकर एक 5वां अपना अध्यक्ष चुनेंगे, और वो 5 लोग मिलकर जो फैसला दे दें उसको सर्वमान्य से वो मंजूर होगा। लेकिन वो सेनापति उनका जो युद्ध चाहता था, उन्होंने मना किया, वो लंबी फिर प्रक्रिया हो गई, और उसको फिर बुद्ध ने, मतलब ये सिद्धार्थ ने स्वयं उसके सामने शर्त रखी, सिद्धार्थ के सामने, कि क्या रखे हैं कि आपके पिता को राजगद्दी से उतार करके उनके सारे खेतों को जब्त कर लिया जाए और शाक्य संघ को दे दी जाए और आपको देश से निकाल दिया जाए। या तो आप ऐसा कर लो कि आपके पिता को राजगद्दी से उतार दें और आपके सारे खेत प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाए, इसके लिए सजा ये है, या आपको पूरे परिवार समेत ही देश से निकल जाओ। तो ये 2 कंडीशन थी। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि एक तीसरा और रास्ता है कि समस्या मेरे कारण है, आपको मेरे से खतरा, क्यों ना मैं ही अकेला इस राज्य से निकल जाऊं, परवर्जित होकर, सन्यासी बन करके।
तो ये बात मान ली गई कि सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिता को राजगद्दी से ना उतारो, उनके खेत जब्त मत करो, प्रॉपर्टी जब्त मत करो, उनका परिवार, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, मैं स्वयं ही परिव्राजक के रूप में मैं निकल जाता हूँ। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो कैसे कैसे वो एक फिर कभी डिटेल में बातें करेंगे। उसके बाद ये अभिनिष्क्रमण, जो वैराग्य कैसे पैदा हुआ। एक्चुअली वो तो बचपन से जब चींटियों को देखते थे वो खाना इकट्ठा कर रही हैं, कीड़ों को, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमने खेत ना बोया जोता होता, कीड़े ना निकले होते, चिड़ियों को वो कीड़े ना मिले होते, तो उनका आहार ना मिला होता, तो सृष्टि कैसे चलती। तो इस तरह की एक वैराग्य बचपन से ये हो जाता है। तो आगे चलकर क्या कि जो बच्चे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों से कि बच्चे जो पढ़कर आए हैं, पढ़ने के बाद भी वो पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आप पढ़िए, इंटरनेट से पढ़ें, किताबें पढ़ें, लेकिन जब हम किसी के सामने बोल रहे हैं तो रट्टा नहीं मारना है, वो जो पढ़ा हुआ उसको दिमाग पर तोड़ना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बुद्ध हिंदी धम्मा खोल लूं तो वो उचित नहीं है। मैं क्लाइमेक्स जो उसका रस है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह से आप पढ़े, इंटरनेट पढ़ें, किताबें पढ़ें, लेकिन जब हम मीटिंग में बैठे हो तो पर्चा लिख कर ना रखें कि यही पढ़ना है। उसका जो डेटाबेस आपने अपने दिमाग में सुरक्षित कर लिया है, जो क्लाइमेक्स है, जो मेन पॉइंट है, जो उनका रस है, वो आप जाहिर करें और ये बताइए कि मैंने ये सीखा है, एक बात। और बच्चों को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, वो 1-2 मिनट में इस पे भी लूंगा क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक्चुअली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बचपन में जब हाई स्कूल पास किया तो उनके एक गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कृष्णाजी कैलुस्कर, जिनके बारे में ये भी अफवाह फैलाई जाती है, एक पुस्तक में मैंने भी पढ़ा है, वो गलत है लिखा हुआ, कि डॉक्टर आम्बेडकर जो सरनेम है किसी ब्राह्मण टीचर का है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। उनके जो टीचर थे उनका नाम कृष्णाजी कैलुस्कर थे। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, ये 1908 के आसपास के ये घटना, जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया था 8 या 10 के आसपास, तो बुद्ध चरित्र को उनको भेंट किया। तो बचपन से ही बाबा साहब का जो पढ़ते थे पुस्तक को, वो असर, बच्चे होता है, हम भी ऐसे किए, हम बचपन से बुद्ध को पढ़ रहे हैं तो आप चीवर पहन लिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग चीवर पहन लेंगे। तो लेकिन बाद में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और 32 में पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब ये चाहते थे कि जो वैदिक धर्म, हिंदू धर्म है, जो ब्राह्मण गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं, इसमें चेंजिंग लाए। बस बाबा साहब का 1932 तक का जो काम था, जो चेंजिंग लाए, हमें अपने अधिकार, मौलिक अधिकार मिल जाए जीवन जीने के लिए, ताकि हम जी सके ठीक से, बाकी वो सुधार कर ले हिंदू धर्म में। और बाबा साहब का कोई अलग होने का कोई विचार नहीं। लेकिन जैसे पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब को समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने वो धर्मांतरण की घोषणा जो 36 में किया, हम बहुत क्या धर्मांतरण को लेकर एक है आर्टिकल उसको भी। 1935 के बाद 37 में जब चुनाव हुए, उसके बाद जब बाबा साहब जैसे जैसे काम आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे बाबा साहब की धारणा एक मन पक्का होता चला गया कि नहीं, इस धर्म में रह करके हमारे लोग का, हमारा लोग कोई कल्याण नहीं होगा। जैसे हजारों सालों तक आज हम सांसें ले रहे हैं, आज हम स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का राज है। अंग्रेजों के जाने के बाद बाबा साहब को जो चिंता थी, अंग्रेजों के जाने के बाद क्या होगा। वो जैसे कि 1942 में मंत्रिमंडल में बन गए थे, ये श्रम मंत्रालय उनको मिला, तो उस विषय में अलग से मैं फिर कभी बोलूंगा। जब श्रम मंत्रालय मिला तो देश भर के लोग जैसे उनके पास आए, क्या यूनियन, सफाई कर्मचारियों के लिए उन्होंने यूनियन बनाया, मुंबई में बुनकर यूनियन बनाया, उन्होंने मोचियों के लिए अलग से यूनियन बनाया, सभी तरह के लिए यूनियन उन्होंने बनाई और सबको अपने से कनेक्ट किया। वो एक लंबा विषय है। तो जैसे जैसे समय गुजर रहा था और अंग्रेजों को मतलब ये कि डिवाइडेशन, फिर पाकिस्तान की बात आ गई, तो भारत का विभाजन और पाकिस्तान, इसमें बाबा साहब ने अलग से लिखा है। तो बाबा साहब का निश्चय दृढ़ होता चला गया, इस धर्म में रहते हुए हमारा कोई कल्याण नहीं होगा, हमें पुनः किसी धर्म में जाना होगा। उन्होंने बाबा साहब ने अपने भाई के लड़के मुकुंद को अमृतसर भेजा, यहाँ स्वर्ण मंदिर में रहने के लिए। 7-8 महीने वो मुकुंद वहां अमृतसर में रहे, उन्होंने सिख धर्म को सीखा। और सीखने के बाद फिर, क्योंकि बाबा साहब सिख बनना चाहते थे, पहली प्राथमिकता उनकी वही थी कि मैं भारतीय धर्म को अपनाऊंगा। लेकिन उन्होंने बताया कि सिखों में भी मजहबी, रविदसिया, रामगढ़िया और जट सिख की बहुत बड़ी श्रृंखला है, और ये भी ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत हमको हीन दृष्टि से देखते। जट सिख वहां पर अरोड़ा खत्री, वहां पर बाहुबल है और वो हमको दबा कर रखते हैं, ऐसा मुंगन ने सूचना दी। तो बाबा साहब का मन वहां से भी हटा। बाबा साहब ने एक बाइबल पर पुस्तक लिखी थी, वो अप्राप्य है, भी मैं प्रयास करूंगा किस तरह से मिले हमें, लंदन में वो मिल जाएगी, लंदन में वो पुस्तक रखी है, शायद म्यूजियम में रखी हो।
तो बाइबल पर एक रिसर्च किया और बाबा साहब ने पूरी दुनिया भर की बाइबलों की स्टडी किया, क्योंकि बाबा साहब चर्च में जाते थे। जब वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उनकी फ्रेंडशिप जैसे कि निग्रो लोगों से वो चर्च में जाते थे, तो उनका लगाव बढ़ता चला गया। तो उन्होंने फिर उस पर रिसर्च किया, पूरी दुनिया भर की बाइबलें पढ़ी और एक खुद किताब भी लिख डाली बाइबल के ऊपर। हालांकि वो गायब कर दी गई है पुस्तक, आज हमारे पास नहीं है, प्रयास करेंगे तो मिल सकती है। तो बाबा साहब ने भी ये देखा कि ये भी जो दिखाई देता है वो एक्चुअली में है नहीं, तो वहां से फिर आस्था बाबा साहब की डिगी, अच्छा ये भी ठीक नहीं। फिर बाबा साहब ने देखा कि सबसे पूरी पूरी दुनिया में कौमी एकता अगर दिखाई देती है वो इस्लाम के अंदर है। तो बाबा साहब ने कुरान, हदीस, इकबाल, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। तो पढ़ने के बाद उनका जैसे जिन्ना से और शौकत अली से और एक रहमान साहब थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुस्लिम उनके साथी थे, उनसे डिस्कशन होता था। एक्चुअली में वो प्रयास करते थे उनको, जैसे मुझे भी बहुत आज भी प्रयास करते कि तुम मुसलमान बन जाओ। तो हैदराबाद के निजाम ने तो ऑफर ही कर दिया कि मैं आपको हैदराबाद स्टेट का निजाम बना दूंगा और अपनी सिस्टर से शादी भी कर दूंगा। तो बाबा साहब को कुछ लालच नहीं था, लेकिन वो नजदीक से देखना चाहते थे कि लोगों का व्यवहार कैसा है। तो हैदराबाद के निजाम के पास वो जब गए मिलने के लिए, 15-20 लोग उनके साथ थे और सफर में धूल मिट्टी में हो गए थे। तो जो हैदराबाद निजाम का जो हैदराबाद में जो महल है उसके बाहर एक तालाब था, उसमें वो हाथ मुंह धो रहे थे जैसे। तो नवाब के नौकर ने उनको देख लिया और उनको गालियां देकर लाठी बजाना शुरू कर दिया। तब पता चला बाबा साहब को, नहीं ये जो कहते हैं जो कुरान में लिखा है एक्चुअली में सिर्फ लिखा है, फॉलो नहीं करते भारतीय मुसलमान, यहाँ भी छुआछात है। तो बाबा साहब वहां से, फिर बाबा साहब की जो बचपन की इच्छाएं थी वो जोर मारने लगे। 50 में आते आते 1950 तक बाबा साहब ने निश्चय कर लिया कि मुझे बौद्ध धर्म के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं। उसके कई कारण हैं। उसके कारण 50 तक निर्णय हो गया था कि हमें बौद्ध बनना है। उसका कारण ये कि जो बाबा साहब ऐसे चाहते कि जो जिस धर्म की जड़ें भारतीय हूँ, हमारी जड़ें हमारे देश में हो, एक बात। दूसरे, जो समानता का अधिकार दे, जो स्वतंत्रता का अधिकार दे, जो भाईचारे को बढ़ाता हो, जहां छुआछात ना हो, जहां हर आदमी प्रोग्रेस कर सकता हो। ये कुछ कारण थे जो बाबा साहब को बुद्धिज्म में मिले। लेकिन बुद्धिज्म को समझने के लिए और समझाने के लिए कोई पुस्तक नहीं थी। तो त्रिपिटक को पढ़कर बाबा साहब ने फिर बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखना 1950 में शुरू किया। तो 1956 जब उनका ये 6 दिसंबर को जब उनको सुना कि सुबह वो नहीं रहे, तो रात को 5 दिसंबर की रात को उसको लिखकर वो उस पर सिग्नेचर किया भूमिका पर, वो फिर वो शांत हुए। ये सब रहा है। तो एक तो ये है। दूसरे कि ये इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया। आगे के बाबा साहब के जो वॉल्यूम है, मैं थोड़ा मैसेज देना चाहूंगा, वो भारत सरकार ने जो छपवाए हैं इस समय, आप सभी जैसे जैसे हैं आप मंगवा लीजिए। अभी अप्राप्त है, मिल सकते हैं, अभी अप्राप्त नहीं है, अवेलेबल हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मंगवा सकते हैं, आप बहल साहब से या उपासक रवि जी से या जिसके पास मेरा नंबर हो से कांटेक्ट करें इंडिया में, मैं उनको वहां भिजवा दूंगा। पोस्टल मैं उनको जो बाय पार्सल भी भिजवा दूंगा, लेने भी हम लोगों को भेज भी देंगे लेकर के। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप साहित्य मंगवाएं। तो मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। मंत्री जी, क्वेश्चन तो आपने तकरीबन सारे हल कर ही दिए हैं। तो अभी बाकी जो बचा है वो अगले सेशन के लिए रख देते हैं। जी जी तो काफी समय हो चुका है, अब इसको वाइंड अप कर दें। आशीर्वाद गाथा समय हो गया है क्या? हाँ, आशीर्वाद गाथा बोलिए। हाँ, ब्लेसिंग। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और आंखें भी बंद कर। सब मंगल वता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावे हेतु सबे पुरेन्तु चित्त संकप्पा चंदोपन्न रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति संग संपत्ति में वच तंतो निब्बान संपत्ति यमीना च समिजतु
सब रोगो विनमुक्तो सब संताप विजतुतो सब वीरमति कक्कतो चैतु भव आकाशाठा च दुख भूमठा देवा नागा महिकृता तेहि तुहे निख्यमन्तु आरोग्यं सुखेन च इंदितमन्तो च ये देवा वसंता इदे साविस्तो तेपि सुखंत रखन्तु आरोग्य सुखेन चितो तेस संग सच्चेन शीलेन खंति मेता बले मगद तेपि तवे रखन्तु पे आरोग्यन सुखेन चाति सभे बुद्धा बलपियपत्ता पच्चे कान अरहंतायन तंतं चैते जैन सत्ता सोंति भवन्तु ते एतेन सच्चिवज्जेन सोंति ते होतु सबदा एतेन सच्चिवज्जेन सब रोगा सब भया सब दुखा विनशतु एतेन सच्चिवज्जेन होतु तेजया मंगलं सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चेखेमिनो सबे भद्राणि पसंतु मा किछि दुख मागमा साधु साधु साधु। आपका मंगल हो, आप सुखी हो, आप सबका कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धा बनते जी, थैंक यू। थैंक यू जय भीम। रवि जी आप करें माइंड आप। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੁੱਡੀ ਆਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਪੋਤੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਰਮਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼। ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸਰ। ਲੈਫਟ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ USA ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੇਡੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ